آج ہم مقدس یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی آیات 45 تا 49 پر دھیان و گیان کریں گے۔ اور آج ہم پاکما کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر مقدس برتلمائی رسول کی عید مناتے ہیں۔ فیلبس کو نتانیل ملا اور اس نے اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے تورات میں اور انبیاء نے بھی کیا ہے، ہم نے اسے پا لیا۔ وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ نتانیل نے اس سے کہا، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فیلبس نے اس سے کہا، آ دیکھ لے۔ یسوع نے نتانیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا، دیکھو ایک حقیقی اسرائیلی، اس میں مکر نہیں۔ نتانیل نے اس سے کہا، تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا اور اس سے کہا، اس سے پہلے کہ فیلبس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ نتانیل نے اسے جواب دیا کہ ربی، تو خدا کا بیٹا، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ آج پاکما کیتھولک کلیسیا 12 رسولوں میں سے ایک یعنی کہ مقدس برتلمائی کی عید منا رہی ہے، جنہیں خداوند یسوع مسیح نے اپنی کلیسیا بنانے، خوشخبری سنانے اور سب قوموں کو شاگرد بنانے کے لیے چنا تھا۔ برتلمائی جیسا کہ اناجیل موافقہ میں اس کا نام لیا گیا ہے، غالباً اس کا اصل نام نہیں بلکہ اس کے نسب نامہ کی تفصیل ہے۔ ارامی میں اس کا نام برتلمائی ہے، جس کا مطلب تولمائی کا بیٹا کے طور پر کیا جاتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں تولمائی نام کے دیگر افراد کا تذکرہ موجود ہے، لیکن برتلمائی کے والد یا پس منظر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اگرچہ برتلمائی کے بارے میں کچھ بھی یقینی نہیں ہے، لیکن اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اناجیل موافقہ میں بیان کردہ برتلمائی وہی شخص ہے جو مقدس یوحنا کی انجیل میں نتانیل ہے۔ لہذا یہ ہو سکتا ہے کہ نتانیل تولمائی کا بیٹا اس کا پورا نام ہے، جس کی آج ہم عید منا رہے ہیں۔ اناجیل موافقہ میں صرف ایک برتلمائی کا ذکر رسولوں کی فہرست میں ملتا ہے۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی آیات 2 تا 4، مرکز 3 باب 16 تا 19 اور لوکا 6 باب 14 تا 16۔ رسولوں کے اعمال میں اس کا ذکر خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد یروشلم میں موجود رسولوں میں سے ایک کے طور پر کیا گیا ہے۔ اعمال 13واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ یوحنا کی انجیل میں نتانیل کا صرف 2 بار ذکر ہے۔ یوحنا پہلا باب اس کی آیات 45 تا 51 اور یوحنا 2 باب اس کی 21ویں آیت۔ پہلا حوالہ نتانیل کے بلانے سے متعلق ہے اور دوسرے حوالے میں اس کی شناخت ان 7 میں سے ایک کے طور پر کی گئی ہے جو اس وقت موجود تھے جب خداوند یسوع مسیح اپنے جی اٹھنے کے بعد جلیل کی جھیل پر ان پر ظاہر ہوا تھا۔ ان اقتباسات سے ہم نتانیل کے بارے میں جو سب سے اہم بات جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسے ہمارے خداوند نے 12 رسولوں میں سے ایک کے طور پر چنا تھا، لیکن اس کی دعوت کی کہانی اور اس کی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گفتگو ہمیں بہت کچھ سوچنے کے لیے فراہم کرتی ہے۔ یوحنا 1 باب
43 تا 51 आयात में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने फेलबुस को उस वक्त पाया जब वो जलील गया और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। फेलबुस फौरी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करता दिखाई देता है। फेलबुस इतना पुरजोश है कि उसे नतनएल मिल गया, जो शायद उसका दोस्त या रिश्तेदार था। वो नतनएल से कहता है कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और अंबिया ने भी किया है, हमने उसे पा लिया। वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। यह पहला मौका था जब नतनएल ने खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को सुना, जिसकी वो बाद में पूरे दिल से तबलीग करेगा। बहुत से लोगों की तरह नतनएल इब्तदाई तौर पर शक्की है, इसलिए उसने फेलबुस को जवाब दिया, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फेलबुस का जवाब मिसाली है और वाज़ेह तौर पर रूह कुदस की बदौलत है। फेलबुस ने नतनएल से कहा, आ देख ले, और नतनएल ऐसा ही करता है। पहले तवक्कुफ करना और खुदावंद यीशु मसीह के पास आने की अपनी पहली दावत पर नतनएल के जवाब पर गौर करना जरूरी है। आ और देख ले एक जुमला है जो हम सब पर लागू होता है। बेशुमार तरीकों से खुदा बाप हमें हर रोज दावत भेजता है। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुनना, उसके बारे में पढ़ना या उसका मुतालिया करना काफी नहीं है। हमें इससे मिलने, उसे शख्सी तौर पर मिलने के लिए आना चाहिए, जैसे नतनएल ने यह काम शख्सी तौर पर किया। हमें भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए किसी हद तक इसी तरह करने की दावत दी जाती है। मुतजस्सद कलमा की वजह से खुदा का बेटा हमारे पास जाती, हकीकी और जलाली तौर पर आने के काबिल है। जब हम दुआ करते हैं तो हम कहीं दूर दराज बसे खुदा से गुफ्तगू नहीं करते, बल्कि हम सच्चे खुदा के पास आने के काबिल हैं, जो हमारे साथ ऐसे तरीके से बात कर सकता है जो हमें उसकी मोहब्बत का कायल करे, ताकि हम अपने पूरे वजूद के साथ उसकी पैरवी करें। नतनएल के साथ ऐसा ही हुआ। उसने खुदा के बेटे की जिस्मानी मौजूदगी को अपनी आंखों से देखा, लेकिन हमारे मामले में खुदा का बेटा पोशीदा शक्ल में नतनएल के पास आया। जब भी हम दुआ में अपने खुदावंद की तरफ मुतवज्जे होते हैं, पाक मास में शिरकत करते हैं, मुकद्दस घंटा की इबादत करते हैं, या बाइबल मुकद्दस जो खुदा का जिंदा कलाम है उसे पढ़ते हैं, हम उसी खुदा से मिलते हैं जो नतनएल से मिला था। जब नतनएल खुदावंद यीशु मसीह के पास आया तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसके हाथ में कहा, देखो एक हकीकी इस्राएली, इसमें कोई मकर नहीं। यह खुदावंद यीशु मसीह ने नतनएल के लिए उसके दिल को पढ़कर उस पर यह जाहिर किया था। नतनएल ने मजीद दरियाफ्त किया कि खुदावंद यीशु उसे कहां से जानते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने नतनएल को जवाब दिया कि जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। यह बात नतनएल को इतनी गहराई से छू गई कि खुदावंद यीशु मसीह के इस मुख्तसर जवाब के साथ नतनएल तब्दील हो गया। वो पुकारता है, रब्बी तू खुदा का बेटा है, तू इस्राएल का बादशाह है। ये खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज नहीं थे जिन्होंने नतनएल को छुआ, ये उसकी इलाही हस्ती थी जो उसकी इंसानी शक्ल के पीछे छुपी हुई थी। नतनएल की रूह ने खुदावंद यीशु मसीह में खुदा की मौजूदगी को महसूस किया और वो फौरन ही उसका पैरोकार बन गया। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। 12 रसूलों में से एक के तौर पर
नतैनियल ने खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया खिदमत के दौरान खुदावंद यीशु मसीह का साथ दिया। उसने खुदावंद यीशु मसीह से सीखा, वो खुदावंद यीशु मसीह के जरिए तश्कील दिया गया और अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दे दी। उसने खुदावंद यीशु मसीह की गिरफ्तारी का तजर्बा और मुशाहिदा किया, दूर से उसकी मौत का तजर्बा किया और फिर उसे अपनी आंखों से दोबारा जिंदा होते देखा। जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर चढ़े तो नतैनियल उन लोगों में शामिल था जिनसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, लेकिन जब रूह कुद्दुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हम रसूलों के अमाल उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत में देखते हैं और खुदावंद यीशु मसीह यह भी कहते हैं कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें यह तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। अगरचे हम यकीनी तौर पर नहीं जानते कि तोलमाई के बेटे नतैनियल ने इस अजीम हुक्म को कैसे पूरा किया जो उसे खुदावंद यीशु मसीह से मिला था, लेकिन 3वीं से 4वीं सदी के कलीसिया मुवर्रख कैसरिया के यूसेबियस की एक इब्तदाई रिवायत में कहा गया है कि वो यीशु मसीह की तरफ से आया था। हिंदुस्तान में जहां उसने मुकद्दस मत्ती की अंजील की एक नकल छोड़ी, बाद की रिवायत बताती है कि वो आर्मीनिया, एथोपिया, मेसोपोटामिया, पार्थिया और लाकूनिया भी गए। बास रिवायात में बताया गया है कि आपको अल्बानोपुल्स शहर में शहीद किया गया, जो कि जदीद दौर के आर्मीनिया या अल्बानिया के 2 कदीम कस्बों में से एक हो सकता है। इन रवायात में बताया गया है कि आर्मीनिया के बादशाह का मजहब तब्दील करने के बदले में उसका सर कलम किया गया या जिंदा जला दिया गया और उल्टा सूली पर चढ़ाया गया। यही वजह है कि मुकद्दस बरतलमाई अक्सर अपनी जिल्द को थामे हुए मुकद्दस तस्वीरों में दिखाई देते हैं। अगरचे अजीम हस्तियों को साबित करना या फिर गलत साबित करना मुश्किल है, लेकिन जो हम यकीनी तौर पर जानते हैं वो ये है कि जब ये शख्स खुदावंद यीशु मसीह खुदा के बेटे इस्राएल के बादशाह से मिला तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। हम में से हर एक के बारे में भी यही कहा जाना चाहिए। हमें अपने खुदावंद से बरतलमाई की तरह जाती तौर पर मिलना चाहिए। उसकी इलाही मौजूदगी को हमारी जिंदगियों को बदलने की इजाजत देनी चाहिए और कभी पीछे मुड़कर नहीं, बरतलमाई की तब्दीली की पैरवी करने और आज ही उसकी शिफायत हासिल करने के लिए अपनी रजामंदी पर गौर करें। मुकद्दस बरतलमाई, आपने खुदावंद यीशु नासरी से मुलाकात की और आपने फौरन पहचान लिया कि वो खुदा का बेटा इस्राएल का बादशाह है। इलाही फजल के लिए आपकी कुशादगी ने खुदावंद यीशु मसीह को आपकी रूह को छूने और आपको हमेशा के लिए बदलने के काबिल बनाया। बराए मेहरबानी हमारे लिए दुआ करें कि हम भी खुदा के बेटे की इलाही मौजूदगी के लिए अपने आप को खुला रखें ताकि वो हमारी रूहों को छू सके और हमारी जिंदगियों को बदल सके। मुकद्दस बरतलमाई रसूल हमारे लिए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।